So welcome and I am Ashwani Yadav and I have done M.Tech from iiest as a mechanical engineer and renewable energy. I have done M.Tech in renewable energy. Of course, today we will study very important tool to recall. हम लोग पढ़ रहे थे, we are studying Gauss law. And of course we can see Gauss law is a very important in electrostat to find the electric field if you don't know the charge distribution. If you don't have, also can find with the Gauss law what is the electric field inside the charge distribution. Now we will study one important tools, solid angle. हम लोग आज पढ़ेंगे solid angle. What is a solid angle and how it can connect it with the Gauss law. It's going to be very useful in electrostat. Of course, electrostat and also in heat transfer, radiation. When you so it is useful in many ways in different chapters. We will study. If you want to understand what is solid angle, if you know solid angle, you can understand many expression and in physicality in physics. Okay. So solid angle, I can say it is three-dimensional angle. It is a three-dimensional angle enclosed by lateral surface of cone. Enclosed by the lateral surface of cone. Its unit is asteradian, and in 2 dimensions this is the angle. You measure it in radian, but solid angle in 3-dimensional angle, enclosed by lateral surface of the cone is measured. Its unit is asteradian. At its vertex. Okay, suppose this is your cone and it is vertex. So this is the angle, and this angle is called solid angle. So it is a 3-dimensional angle sustained by this cone at the vertex. Of course, we can see in another way. Suppose this is a spherical this is a sphere, and you consider this a spherical surface, and this is the center, radius r, and you see this is the angle. This is also solid angle, and it can make a cone like this, and actually this spherical section making this angle, solid angle at this center O.
Okay, and this is your angle, and this angle is called solid angle. And you can see actually this is a spherical section. A spherical section. Okay, this is your well-defined surface. But we want to know the solid angle of any random surface at a given point. We can understand easily this how much this angle is. ये angle कितना है हम लोगों को पता है. It is you can measure this, and this angle is actually solid angle in 3 dimensions, nothing but. In 2 dimensions it is called radian, and in 3 dimensions it is called solid angle as unit is asteradian. Okay, it is for 2 dimensions and it is for 3 dimensions. But ये इम्पोर्टेंट नहीं है. अभी हम लोग को जानना पड़ेगा कि कोई भी एक रैंडम सरफेस किसी भी पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बना सकता है. कोई भी हम जैसे एक रैंडम सरफेस लेंगे, now calculate the solid angle of a random surface at a given point. Okay, this is your question. Now you have to find suppose we have a disk. This is our disk, and given point, suppose the given point is this one. It is O. And connect every point to O. Every point to O, you will find. You can find this angle. You can define this angle as solid angle, and this distance is R. And take this as a center. Okay, आप इस सारे पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट करें. यू विल फील इस तरह से आप सारे पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर दें तो आपको लगेगा कि जैसे एक कोन बना है, और ये कोन जो इतना एंगल बनाएगा उसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं. बट हाउ कैन यू डिफाइन दिस? Suppose this is another disk having radius R2 and area is A2. इसका एरिया A2 मेजर कर सकते हैं. You can take this area as A2. Then solid, you can define solid angle is ratio of this area A2, say A2 by R2 whole square. Okay, this is nothing but area by R square. And suppose this is
S1, you can also write area A1, you can also write A1 by R1 ka whole square. Say this is R1. So क्या है? This is nothing but ratio of area of any sphere interrupted by this cone so it is also dimension it's not just a radian but it is dimensionless quantity. इसका डायमेंशन तो नहीं होगा क्योंकि आर स्क्वायर का गोइंग टू कैंसिल्ड, ये भी मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, बट स्टिल इसका हम ऐसा यूनिट ऑस्ट्रेलिया में कंसीडर करते हैं. सो वन, इफ आई से दिस इज वन, व्हेन इट्स गोइंग टू वन, इफ आई डिफाइन वन स्टेरेडियन is the solid angle subtended at the center of a sphere by the surface of sphere having area equal to a square of radius of a sphere. Okay, if both are equal, then solid angle will be 1. Okay, and you know this one thing you should notice that this axis and is normal to the surface. This area may be inclined to this axis. Okay, then you have to take the projections of this area normal to this axis. Suppose suppose this is your surface and it is making a solid angle, and this is the axis of a solid angle, and this is your area vector dA, and this is your axis. This time it is making an angle theta. Then what is the solid angle? What is the solid angle? This is nothing but you just project this area along this axis. You will find dA cos theta by r square, and this is your r. If you tilt it, then this will be different. So you have to take this r, this length,
this length, this is the, okay, O to P, this is the R here. This, and if we tilt it by angle theta, this length and this length and this length will be different. And if it is making a 0 degree, this area is making a 0 degree with this axis, then cos theta will be 0 degree, then we have dA by R square. तो हमारे पास सॉलिड एंगल क्या होगा, dA by R square. जब हम cos थीटा 0 डिग्री होगा तो ये सारा लेंथ, ये रेडियस सब बराबर होगा. तो हम लोग कोई भी लेंथ ले सकते हैं. इससे पहले हम ये लेंथ लिए थे, ये मेजर करके लिए थे आप, बट हमको ये लेंथ लेना होता है. सेंटर्स, इसके सेंटर से, इससे सेंटर से हम कनेक्ट करेंगे, वो रेडियस ही है जिसको मेजर करेंगे, उससे हम डिवाइड करेंगे इस कंपोनेंट को, dA by cos थीटा को, वो हमारा सॉलिड एंगल होगा. Okay, now ये तो बेसिक है, पर इसे हम डिस्कस कैसे करेंगे. जैसे यदि हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कंसीडर करते हैं, okay, now there is a relationship. How to find? There is a relationship between angle of cone and solid angle at vertex. Okay, let us consider a spherical section S of radius R which sustained angle 2 phi at the vertex of cone. Sorry, maybe can say at the center of curvature, at the center of curvature. Okay, then how much you angle can calculate with help of this angle, if this angle is given. Do you know the area, this spherical section, any spherical section, what is the dA? We have calculated earlier, हम लोग पहले भी इस इक्वेशन को लिख चुके हैं, that is 2 pi r sin theta into r d theta. This ये spherical कोई एलिमेंट्री एरिया लेंगे उस इक्वेशन से 2 pi r sin theta and dr. इसे हम लोग बहुत बार दे चुके हैं. ये spherical section है, और ये जो एरिया हम ले रहे हैं, ये एरिया जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल है 2 पाई. ओके, तो कितना सॉलिड एंगल बनाएगा. ये स्फेयर है, ये स्फेयर का एरिया क्या है, देखिए हम जैसे ये एंगल जो होगा आर डी थीटा होगा, और ये आर है, तो ये रेडियस कितना होगा, इसे आप यदि फाई या थीटा जो भी मान लेते हैं, फाई लिखा हुआ है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है. आप इसे थीटा भी मेजर कर सकते हैं, फाई लिख सकते हैं. तो ये क्या होगा, आर साइन थीटा. ओके, तो
ये जो सेक्शंस है आर, इसका इसका जो एरिया होगा 2 पाई आर साइन थीटा पेरीमीटर, जो थिकनेस है आर डी थीटा, इसकी एरिया हो जाएगा। इसमें बहुत इस एक्सप्रेशन को बहुत पहले भी बहुत बार ले चुके हैं, दिस इज एक्सप्रेशन। तो what will your area, आप डीए को इंटीग्रेट कर देंगे, देन यू विल गेट टोटल एरिया ऑफ स्फेरिकल सेक्शन। ये पूरा स्फेयर हम लोग नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ये जस्ट एक स्फेरिकल सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं जो कुछ एंगल तक डिफाइंड है, जो एंगल हमारा कहां से कहां तक है 2 फाई तक है। तो हम इसे स्फेरिकल सेक्शन में जानते हैं कि ये जो एंगल है वर्टिकल एंगल, ये 0 से पाई, हम देखेंगे जब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो उसमें ये जो थीटा है एक्जिम्यूथल एंगल जिसे हम कहते हैं वो 0 से पाई तक वैरी करेगा। पर हम यहाँ पे जो एंगल लिए हैं वो 0 से, जब हम डीए को इस एक्सप्रेशन को हम लिख देते हैं 2 पाई आर साइन थीटा आर स्क्वायर डी थीटा, ये कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, ये हाफ एंगल जो है ये 0 है, 0 डिग्री टू फाई, टोटल एंगल 2 फाई है। पर हम लोग देखेंगे कि पूरा एंगल को कवर करने में हम ये जो थीटा है हम लोग देखेंगे अभी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट डिटेल से, कि जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट है इस तरह से देखेंगे, थीटा है और ये जिसका प्रोजेक्शन दिस इज आर साइन थीटा, ये जो थीटा है ना ये इस तरह यहां से इस तरह से रोटेट करेगा पूरा तक, तो हमारा स्फेयर बन जाएगा। हम लोग 0 से पाई से रोटेट करते हैं, 0 से 2 पाई से रोटेट नहीं करते हैं। ओके, तो एंगल हमेशा जो एरिया को कवर करने के लिए होता है 0 आधा एंगल होता है। यदि ये 2 पाई एंगल है तो हम हाफ एंगल लेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। एंड आप इसे बाहर निकाल दें 2 पाई आर स्क्वायर, then you have sin theta d theta integration and 0 to 5. Okay, so we have 2 pi r square sin theta is equal to cos theta and minus integration will be minus cos theta, और जो हम 0 ऊपर कर सकते हैं then we have 1 minus cos phi. So what will be the solid angle? आप जानते हैं solid angle क्या होता है, ये हमारा क्या होगा, एरिया बाय आर स्क्वायर। एरिया हमारा क्या है 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई, हाफ एंगल जो कोण बनेगा उसका ये हाफ एंगल है, पूरा एंगल 2 पाई है, then cos phi by r square, then we have 2 pi 1 minus cos phi. Okay, this is your solid angle. And this is the half angle. Actually, this is the half angle of a cone. Actually, आप इसे कोन की तरफ देख सकते हैं, इस पॉइंट से आप एक कोन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, जो हम लोग पहले ही देख चुके थे कि ये कोन जो एंगल बनाएगा उसे सॉलिड एंगल कहते हैं। पर ये जो स्फेयर है, जो यहाँ का जो स्फेरिकल पोर्शन है, वही एंगल इतना ही बनाएगा। ओके, तो हम इस एरिया को इंटीग्रेट किए और आर स्क्वायर डिफाइन कर दिए, जो आर स्क्वायर से डिवाइड किए, जो इसका बेसिक
बेसिक डिफिनीशन है सॉलिड एंगल का, जिसे हम वो है एरिया बाय आर स्क्वायर, जिसे आपका सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर है 2 पाई 1 माइनस कॉस फाई। यदि फाई यदि 2 पाई हो, यदि ये हेमी स्फीयर हो जाए, देन व्हाट विल बी सॉलिड एंगल? ओके, सॉलिड एंगल का यूज ये हम लोग प्रॉब्लम्स बनाने में यूज करेंगे, क्योंकि इसका बहुत यूजफुल ये रिलेशनशिप है, ये रिलेशन है, जिससे हम फ्लक्स निकालने के लिए अक्सर यूज करेंगे, जिसमें आईटी में कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ। ये बहुत जगह उपयोगी है, हर चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे, थर्मल फिजिक्स में पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, हर जगह ये एंगल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हम इसलिए पता क्या कर सकते हैं, जैसे आप पता कर सकते हैं कि ये पार्टिकुलर 3 डायमेंशन है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, ये वाले 60 डिग्री है, ये स्फीयर का एक पार्ट है। ओके, ये स्फीयर का पार्ट है, तो यहाँ फ्लक्स कितना पास होगा। अब बता सकते हैं कि 3 डायमेंशन में, जैसे यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है, बॉल भी यहाँ पे यदि आप सोर्स रखते हैं, हीट सोर्स, ओके, या चार्ज रख देते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होगा, तो पर्टिकुलर एंगल में, दिस पर्टिकुलर एंगल जो बनाते हुए जो एरिया है, ये सबटेंड एरिया है, यदि यहां से जो फ्लक्स जाएगा वहां इनफ्लक्स इक्वल ही होगा। इस एरिया से जो फ्लक्स जाएगा वो फ्लक्स बराबर ही होगा। तो हम डिफिनीशंस बाय डिफिनीशंस, ये कोण है वो जो इतना एंगल बनाएगा, और ये जो स्फीयर है, दोनों एंगल सेम ही बनाएगा। ओके, तो जब हम लोग डिफिनीशंस, जब डिफाइन डिफिनीशंस देखते हैं कि सॉलिड एंगल जितना एंगल बनाते हैं सॉलिड एंगल कहते हैं। ओके, तो स्फीयर भी इसी सॉलिड एंगल को डिफाइन करेगा। ये जो स्फीयर है, इस कोण का ही कोण एंगल दोनों बराबर होगा। ओके, तो देखेंगे पर्टिकुलर एंगल पे कितना मतलब फ्लक्स हमारा यहां से पास होगा, वो फ्लक्स हम काउंट कर सकते हैं, ये पहले सॉलिड एंगल पता हो। ओके, यदि ये हेमीस्फीयर हो, ये मान लेते हैं हेमीस्फीयर हो, तो यहां पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा? तो हेमीस्फीयर है, तो इस हाफ एंगल यहां पे कितना होगा? यहां पे फाई जो हाफ एंगल है, यहां हाफ एंगल वो पाई बाय 2 है। तो मैं सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा इसके लिए, फॉर हेमीस्फीयर सॉलिड एंगल हमारा हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस पाई बाय 2, एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई। ये पूरा स्फीयर के लिए क्या होगा? यदि पूरा स्फीयर है, ये पूरा स्फीयर है, एक कंप्लीट स्फीयर है, इस पॉइंट पे सॉलिड एंगल क्या होगा? ये हाफ एंगल कितना है? पाई है। देन वी हैव सॉलिड एंगल इस स्फीयर के लिए 2 पाई 1 माइनस कॉस पाई, एंड कॉस pi is equal to -1, so we have 2 pi 1 minus -1, we have 2 pi into 2, that is equal to 4 pi. ओके, तो ये कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा? 4 pi। ठीक है, एक स्फीयर अपने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है वो है 4 pi। ओके, और हेमीस्फीयर अपने सेंटर पे कितना एंगल सॉलिड एंगल सबटेंड करता है वो है 2 पाई। ओके, एंड सॉलिड एंगल का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। एक्चुअली कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको सॉलिड एंगल आना बहुत जरूरी है, तभी आप directional motion, you can define the directional motion in fluid, in gases, and also you can find directional amount of flux passing within certain angle in 3 dimensions. Then you need to find the solid angle. Okay. Now, one question is,
Suppose we have a disk. This is your disk of रेडियस आर। ये डिस्क है जिसका रेडियस आर है और यहां पे हम चार्ज रख देते हैं। ओके, अब देखते हैं कि हम फिजिकल मीनिंग क्या है, हम लोग क्यों पढ़े थे। ओके, तो आपको फ्लक्स निकालना रहेगा। चार्ज इज सिचुएटेड एट अ पॉइंट ए लाइक दिस इज अ पॉइंट चार्ज। हाँ देखिए, अब फ्लक्स यहां से कितना पास होगा, दिस इज योर क्वेश्चन। फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्रॉसिंग द डिस्क, दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, हम लोग जानते हैं कि ये जो रेडियली आउटवर्ड सभी डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो इस एरिया में इस डिस्क से कितना पास होगा। ओके, वी कैन, हम इसे एलिमेंट्री मेथड से फाइंड कर सकते हैं। और अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है, जैसे ये स्फीयर होता तो इसे कितना फ्लक्स पास होगा। यदि हम इसे स्फीयर से कवर कर देते हैं तो इसमें कितना फ्लक्स पास होगा, फ्लक्स कितना पास होगा, दैट इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, यानी ये सॉलिड एंगल कितना सस्टेन करेगा स्फीयर, यानी 4 पाई जो सॉलिड एंगल है स्फीयर अपने सेंटर पे कितना एंगल सस्टेन करता है, 4 पाई। 4 पाई जो सॉलिड एंगल है उसके थ्रू फ्लक्स कितना पास होगा, चार्ज बाय दिस रिप्रेजेंट द फ्लक्स। 4 पाई सॉलिड एंगल कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स है, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यदि हम ये डिस्क का यहां से हम सॉलिड एंगल निकाल लेते हैं, सॉलिड एंगल क्या होगा। ओके, तो 1 यदि सॉलिड एंगल है तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो सॉलिड एंगल ये जो बनाएगा उसके कारण कितना है होगा फ्लक्स, फॉर सॉलिड एंगल डी फाई फ्लक्स जो होगा हमारा क्या होगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड सॉलिड एंगल। ओके, सो दिस इज योर फ्लक्स, चार्ज बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड सॉलिड एंगल। आप ये सॉलिड एंगल यदि हाफ एंगल आपको पता है, दिस इज योर, आप अल्फा मानते हैं, देन व्हाट इज योर सॉलिड एंगल हियर। ये यहां पे सॉलिड एंगल कितना बनाएगा, हमारा फॉर्मूला था, जो फॉर्मुलेशन है हमारे पास 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, एंड दिस इज वेरी इजी। और ये देख सकते हैं कि जो एक्सिस है इसके सॉलिड एंगल के एक्सिस आप देख सकते हैं इस एरिया से 0 डिग्री बना रहा है, मतलब इसकी दोनों एक्सिस पे कोई एंगल का डिफरेंस नहीं है। देन वी हैव 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा इस एंगल। तो दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस। So we have A by hypotenuse is nothing but A square plus R square. Then we have A square plus R square. This is your solid angle. And what is this? Okay, now you can find the flux passing through the disk is nothing but you can just write this expression this much. And what is the solid angle, 2 pi 1 minus A by under root A square plus R square. You have 2 pi going to cancel, Q by 2 epsilon naught 1 minus A by under root A square plus R square. This is the flux, amount of the flux passing through this disk. Okay, look at this, how much important this tool is, idea of solid angle. How much this disk obtained solid angle at this point O where charge is kept. Okay, if you know this flux
if you know how much amount is passing through this flux, you can if you know the solid angles obtained by this disk, then you can easily find this flux, because flux is now charged. This is the point charge actually, point charge Q 4 pi epsilon naught, and this is the solid angle. Look at the utility of this, an application of the solid angle. Okay, this is going to be very important. I will connect this solid angle to solving the problems, where you find its application and usefulness, and it will be very good for you, good to learn all these things. Okay, can you do something more to this problem? Okay, why don't I like to use the elementary method. I want to use some integration, and let us do this. How much it will produce electric field here, and the basic concept of flux is electric field into the area. So I can do this in this way. Let us do it first, because it will be quite entertaining to understand the surrounding of the concept. You can twist the concept, you can twist the things all around, then it will be very easy to solve all the problems asked in your ITG. Okay, so let us do conventionally. We have done this earlier without using the concept of solid angle. If you know the solid angle, then it's very easy. तो हम लोग एलिमेंट्री मेथड्स से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे हम पहले किए थे कि जैसे यहाँ पे Q है, चार्ज A है और ये डिस्क है, तो हम एक एलिमेंट्री एरिया हम लोग कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरह से, इस डायरेक्शन में होगा, लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, एंड ये एंगल जो थीटा है और ये एंगल जो एरिया वेक्टर है ds, ये दोनों एंगल सेम होगा, एंड ये जो y है और ये थिकनेस dy होगा. ओके, और पूरा रेडियस इस डिस्क का r है, देन dA क्या होगा, d इज नथिंग बट 2 पाई y dy, 2 पाई r पेरीमीटर जो इसका है, और थिकनेस. जैसे आप इसे कट करें तो ये एक लंबा होगा, कट करके देखें, यहां से कट कर दें, देखें कि, और इसे लेंथ वाइज हम लोग इलोंगेट करेंगे तो ये एरिया होगा, और कितना होगा इसका पेरीमीटर 2 पाई y, और जो थिकनेस है dy, 2 पाई y इंटू थिकनेस, लेंथ इंटू ब्रेथ, दिस इज आवर एरिया, and this is E. So along this area, what is the component of electric field? Along this area we have E cos theta. So now d phi is this is a small amount of flux passing through this differential area. We have electric field into dA, and what is the amount of electric field actually? Okay, by using Coulomb's law for the point charge, Q by 4 pi epsilon naught Q, I have already written Q by 1 by R, this is R, what is value, A square plus Y square, R square होगा ना यहाँ पे, Q by 4 by R square, dA is nothing but 2 pi Y dy, and also this is cos theta actually, E cos theta, and what is the value of cos theta, that is B by H, that is A by H is nothing but L square plus Y square to the power half. Okay, now you can integrate this, perform this integration, you will find the answer. Well, this will be the similar, you will find the same result, that is, but this is the, we have already solved this problem earlier, but
in terms of solid angle, it is easy to calculate. Okay, in terms of solid angle, it is easy to calculate the flux passing through this disk, and you can proceed like that, and you can find the ultimate result, flux. Okay, and it has same value. So I'm going to write, not going to integrate it, because I have already integrated this in earlier lecture. So this is the flux. यदि आपको सॉलिड एंगल पता है तो आप आसानी से फ्लक्स किसी भी एरिया से आप पॉइंट चार्ज यदि कहीं भी किसी पॉइंट पे लोकेट करते हैं तो आप आसानी से फ्लक्स निकाल सकते हैं. ओके, यू कैन इजीली कैलकुलेट द फ्लक्स. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस. ओके, नाउ आप थोड़ा सा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स देखते हैं, जैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए. जैसे ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लेते हैं. ओके, ये हम पोर्शन यहां पे कंसीडर करते हैं. जैसे ये एंगल थीटा है तो यहां पे जो हम लोग कंसीडर करेंगे ये कितना होगा. दिस इज आर डी थीटा. दिस इज योर, इस पॉइंट का जो प्रोजेक्शन हम यहां पे लेंगे तो ये क्या होगा, यहां पे होगा. और ये क्या होगा, ये यदि आर साइन थीटा होगा. ये इससे परपेंडिकुलर है, ये यदि आर है तो, एंड दिस सॉरी ये आर कॉस थीटा होगा और ये क्या होगा, आर साइन थीटा. इस पॉइंट का प्रोजेक्शन हम यहां पे देखते हैं तो ये दिस इज योर जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड. सॉरी एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड क्वाड्रेंट. ओके, और ये जो साइन थीटा है दिस इज ऑल्सो योर आर साइन थीटा. यदि ये देखिए, ये यदि इस तरह से हम जैसे देख सकते हैं, ये हेमिस्फीयर है, ये कोई पॉइंट है, इसके नीचे जो ये सरफेस बनेगा, ये जो इस तरह से जो ये जो सर्कल है नीचे, ये यदि हम रोटेट करते हैं जैसे डी फाई, तो ये जो एंगल है ये कितना होगा. ओके, ये आर डी थीटा एंड दिस इज आर प्लस आर थीटा. और ये कितना है, आर साइन थीटा इंटू डी फाइव. ये क्या है, डी फाइव जो एंगल है यहां, दिस इज योर डी फाइव. तो ये जो लेंथ है, यहां पे लेंथ है, तो ये जो एरिया हम जो कैलकुलेट करेंगे ये कितना होगा, दिस इज योर डी ए. इससे पहले भी हम इस डिफरेंशियल एरिया को लिखे थे, पर हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम को सीखना चाह रहे हैं. यदि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को जानते हैं तो आप आसानी से मोशन का स्टडी भी कर सकते हैं. अब आना चाहिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट. आप किसी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, अब वेक्टर लिखना आपको आता है, देन कैन यूजुअली फाइंड द वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस एंड एनीथिंग इफ because time derivative will give you the desired result. What will be dA now? dA will be nothing but
length into breadth similarly. Okay, now we have r sin theta d phi into r d theta. और ये क्या होगा, r स्क्वायर sin theta d theta into d phi. ओके, जैसे ये स्फेरिकल सेक्शन है, आप इसका सॉलिड एंगल निकालना चाह रहे हैं। ये सरफेस का जो स्फेयर पे है, जो एक सॉलिड स्फेयर पे है, ये सरफेस हमने लिए, जिसे हम आर थीटा और फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को। ओके, तो सॉलिड एंगल क्या होगा, ये देखिए, देन वी हैव एज यूजुअल सॉलिड एंगल क्या है, डी ए बाई आर स्क्वायर। इस रेशियो को सॉलिड एंगल कहते हैं। देन वी हैव साइन थीटा, आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, आर साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। दिस इज योर सॉरी स्मॉल सॉलिड एंगल आप कह सकते हैं, इंटीग्रेट करके। हाँ, अब नाउ आप किसी भी एंगल जो दिया हो, यदि ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री से 35 डिग्री तक हो सकता है, ये एंगल आपको कुछ भी दिया हो, 0 डिग्री से ले सकते हैं आप, हम 0 डिग्री से कंसीडर कर सकते हैं। और इसे आप इंटीग्रेट करें, टोटल इंटीग्रेशन के बाद एरिया क्या आएगा, इस डीए को, जैसे हमारा डीए है, दिस इज योर आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, इसे आप पूरी तरह से इंटीग्रेट करेंगे, व्हाट विल यू गेट, यू विल फाइंड 4 पाई आर स्क्वायर। डी फाई कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, डी फाई देखिए ये सर्कल है। ओके, ये पॉइंट पूरा एंगल मूव करेगा, और ये पूरा एंगल जो ट्रांसवर्स करेगा नीचे ये बॉटम को बनाने के लिए, वो कितना होगा, 2 पाई होगा। तो आप लिख सकते हैं इस तरह से, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन, ये कितना होगा, 0 से पाई तक, क्योंकि ये एंगल 0 से पाई तक होगा। ये एंगल है, ये कितना रोटेट कर सकता है, ये एंगल 0 से पाई तक रोटेट कर सकता है। ठीक है, ये हेमिस्फेयर है, तो एंगल 90 डिग्री है, पर ये पूरा एंगल यहां से यहां मेजर रोटेट होगा, जो इस तरह से यहां से यहां आने में, तो ये पूरा स्फेयर को कंसीडर करना होगा, तो हमारा होगा 0 से पाई तक। ओके, ये 0 से पाई है, और ये कितना होगा, 2 पाई। देन वी हैव 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा पाई। देन व्हाट वी हैव 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा, इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस थीटा 0 to पाई। ओके, माइनस कॉस थीटा होगा, जिसके कारण हम इंटीग्रेशन को उल्टा कर दिए, लिमिट को चेंज कर दिए। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर कॉस 0 का वैल्यू 1 माइनस 1, देन वी हैव 2 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, हाँ, ये यूजफुल इसलिए है क्योंकि आप कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे ये स्फेयर है, ये स्फेयर का एक पोर्शन है, इससे कितना पास होगा, और आपका एंगल दिया रहेगा, ये एंगल दिया हो सकता है, ये एंगल कितना है, 30 से 45 डिग्री तक हो सकता है, ये एंगल भी कुछ दिया हो आपको, 15 से 20 डिग्री तक दिया हो, तो ये सरफेस जो होगा कितना, यहां से कितना फ्लक्स पास होगा, यदि हम यहाँ पे चार्ज रख दिए तो। ओके, हो सकता है ये हीट सोर्स हो, तो यहां से कितना रेडिएशन पास होगा। ओके, तो सॉलिड एंगल इज ए वेरी गुड कंसेप्ट इफ यू नो सॉलिड एंगल। हाँ, यदि इसका मोशन हो, गैस का मोशन हो, तो पर्टिकुलर डायरेक्शंस में, जैसे इस डायरेक्शंस में इस सरफेस से कितना पास होगा गैस मॉलिक्यूल्स, देन यू हैव टू फाइंड द सॉलिड एंगल। ओके, जब हम गैस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे तो देखेंगे गैस का जो मोशन है, आप देख सकते हैं सभी डायरेक्शंस में इक्वल प्रोबेबिलिटी है उसका मोशन का। तो हम लोग पर्टिकुलर डायरेक्शंस में कितना मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर करेगा, इस सरफेस से कितना मॉलिक्यूल्स पास करेगा, जितना मॉलिक्यूल्स पास करेगा उतना मोमेंटम ट्रांसफर होगा। तो वहां भी हम इसे यूज करेंगे, रेडिएशन में यूज करेंगे, अभी बहुत जगह इसे हम यूज करने वाले हैं इस कंसेप्ट को। आई होप आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक से समझ में आया हो। तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे लेक्चर, आप आसानी से समझ सकते हैं इसे। दिस इज योर 4 पाई स्क्वायर। ओके, ये बस बेसिक इंटीग्रेशन मेथड है। ठीक है, तो सॉलिड एंगल आपका क्या है, देन वी हैव सॉलिड एंगल नथिंग बट साइन थीटा डी थीटा
sine theta, d theta and d phi. Use this integration. Okay, please use this integration. You can find the solid angle. Now, one more question of flux passing through a on the basis of इसी similar concept के बेसिस पे हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसके थ्रू कोई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं और सोर्स दिया होगा. जैसे नाउ वन क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स crossing the wire frame ABCD of length L and width B and whose center is at a distance OP is equal to D from an infinite line of charge with linear charge density lambda, consider that the plane of frame is perpendicular to the line OP. This is a question, okay. Sorry, this is your wire. This is your wire. Okay, this is your wire, and so it will produce uniform electric field, and electric field will be constant actually, and we have like this a frame. This is A, B, you can say that A, B, C, D, and this is the point P, and this distance is D. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसका लेंथ L है और AB का विड्थ P है. ओके, इस तरह से है. तो हम इसे बहुत सारा स्ट्राइक में डिवाइड करते हैं. ठीक है, बहुत सारा स्ट्राइक में इसे हम डिवाइड कर देते हैं. ओके, बहुत सारा स्ट्राइक में हम इसे डिवाइड कर देते हैं.
और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये कांस्टेंट होगा, इस तरह से ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये वायर है और लॉन्ग वायर है, इसी कारण इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है और चार्ज डेंसिटी लैम्डा से चार्ज डेंसिटी और हर स्ट्राइप, और देखिए ये बहुत सारा स्ट्राइप हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और हर स्ट्राइप पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैरी कर रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट जो आर होता है। देखिए हर स्ट्राइप पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ओके। इसे स्ट्राइप नंबर 1 कहते हैं, 2 कहते हैं, 3 4 5 6, तो हर स्ट्राइप पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ओके। तो हम लोग जानना चाहते हैं यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा। ओके, तो देखिए हम लोग इस चीज को देखें कैसे, मतलब कहां से आप लोग फ्लक्स देखने के लिए आपको वेक्टर डिफाइन करना होता है सबसे पहले, जैसे एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर डिफाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम इसे देखें कहां से। ओके, हम यहां से देख सकते हैं, ओके। यहाँ पे आप आंख रखते हैं तो आपको क्या दिखेगा, ये आपको पॉइंट दिखेगा ये आपको पॉइंट दिखेगा, और ये आपको ये दिखेगा, ये तो पॉइंट दिखेगा। और क्या दिखेगा, यदि हम यहां से देखते हैं तो ये है, ये डिस्टेंस d होगा, और ये एक स्मॉल स्ट्राइप हम लेते हैं, ये स्मॉल स्ट्राइप, ओके। देखो यदि हम यहां से देखते हैं तो हमें बिथ दिखाई पड़ेगा, ये बिथ। हम किसी चीज को ऊपर से देखेंगे, इसे हम ऊपर से देखेंगे तो ये हमारा बिथ दिखाई पड़ेगा, ये बिथ। यदि इस बुक को हम ऊपर से देखते हैं तो ये हमारा बिथ दिखाई पड़ेगा, ये लेंथ है, ओके। ये लेंथ है और ये बिथ है, और हम लोग यहां से देख रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये फ्लक्स निकालने के लिए आपको कहीं से देखना होगा, यानी वेक्टर एरिया वेक्टर डिसाइड करना होगा, आप कैसे देख रहे हैं। तो हम लोग ये बिथ दिखेगा, ओके। ये बिथ दिखेगा ऊपर से इस तरह से बिथ दिखेगा, ये बिथ है, और ये पॉइंट चार्ज दिखेगा, और ये बिथ दिखेगा, ये बिथ क्या है, ओके। इस तरह से यहां बिथ दिखेगा, ये पॉइंट चार्ज दिखेगा, यहां से ये देखने पे पॉइंट दिखेगा, ये जो पॉइंट है, और ऊपर से देख रहे तो ये बिथ दिखेगा। और तो डी ए क्या होगा हमारा, यदि हम बिथ, हम ये सिर्फ बिथ कंसिडर करते हैं, और ये देखिए सेंटर लाइन है बिथ का, ये जो सेंटर लाइन है बिथ का, यहां से डिस्टेंस x लेते हैं, और स्मॉल यहां पे dx लेते हैं, ये स्मॉल dx, स्मॉल थिकनेस dx लेते हैं, यहां से डिस्टेंस x पे, तो इस स्ट्राइप जो है यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या प्रोड्यूस होगा, ओके। ये हम जानना चाह रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को क्या दिखेगा, इस तरह से बिथ दिखेगा, इस तरह से ऊपर से बिथ, लेंथ वाइज हम लोगों को बिथ दिखेगा, ओके। ये क्या है, यहां से यहां तक बिथ, ये हम लोगों को दिख रहा है, एल नहीं दिखेगा, पर हमारा डीए क्या होगा, एल डी एक्स होगा ये एल डी एक्स, यदि हम इसे स्टार एरिया लेते हैं, इसका एरिया क्या है, एल डी एक्स, ओके। ये दिखेगा आपको पॉइंट चार्ज की तरह, और ये इसका बिथ दिखेगा, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से आपको देखना पड़ेगा, ओके, तभी आप फ्लक्स इसमें निकाल सकते हैं। तभी तो दिखने का मतलब क्या होता है, आपको एरिया वेक्टर डिसाइड करना, ओके। तो हम लोग ये dx, ये जो आपका dx है, ये यहां से x दूरी पे
सॉरी, क्लियर पिक्चर बनाना पड़ेगा। यहां से x दूरी पे ये dx है, ये हमारा dx है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरह से होगा, एंड एरिया दिस इज dA और E होगा। ओके, हम लोग यहां से देखेंगे इसके परपेंडिकुलर ये एंगल और ये एंगल DA और ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। ओके, मतलब हम इधर देख रहे हैं इस तरह से, बीच को ऊपर से, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जाएगा, तो ये एंगल हमारा ये भी थीटा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम, यदि दिस इज योर R and this is X, then we have electric field lambda 2 pi epsilon naught under root d square plus h square। बस यहाँ पे बहुत इंजीनियरिंग आप जब बीटेक में पढ़ेंगे तो आप इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं कि जब आप किसी को देखते हैं तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कैसे निकालते हैं। ओके, यहाँ उसी कंसेप्ट से यहाँ आपको सॉल्व करना होगा, कहीं ना कहीं से देखना होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे। उसके बाद आपको देखना हम क्या दिख रहा है। यदि हम यहाँ से देख रहे हैं, आप कहीं और से भी देख सकते थे, आप कहीं और से भी देख सकते थे, पर यहाँ से देखना आसान है क्योंकि हमको ये पॉइंट चार्ज की ओर एक पॉइंट दिखेगा और इसका बीच दिखेगा, और इसका इस जो बीच है जो ऊपर सिर्फ ये दिख रहा होगा, सिर्फ ये। ओके, ये जो सेंटर लाइन है, इसका सेंटर लाइन से हमारा डिस्टेंस d है, तो ये जो बीच है इसका सेंटर लाइन से d है, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इससे पास होगा, इसको जैसे यहां से पास हो रहा है और हम लोग ऐसे देख रहे हैं, तो ये एंगल dA होगा। इसका परपेंडिकुलर ही देखेंगे ना, यहां से इस तरह से देखेंगे तो इसका एरिया dA है। ओके, सो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये होगा। फ्लक्स क्या होगा, व्हाट इज द फ्लक्स, हमारा फ्लक्स क्या होगा, व्हाट इज द फ्लक्स d5 थ्रू दिस सेक्शन, इस सेक्शन से हमारा d5 फ्लक्स क्या होगा, वो होगा E dA cos थीटा। E हमारा क्या है, लैम्डा, वी हैव जो हमारा एक्सप्रेशन है 2 पाई इप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर प्लस E स्क्वायर area LdX and cos theta, that is B by H d by d square plus x square and root, this is R. So we have lambda dl dx 2 pi epsilon naught d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कहां से तक वैरी करेगा, माइनस बी बाई टू टू बी बाई टू। आप इसे यहां से नीचे माइनस बी बाई टू कंसिडर कर सकते हैं और ऊपर बी बाई टू कंसिडर कर सकते हैं। ओके, देखिए ये b बाई टू क्योंकि हम लोग ऊपर देख रहे हैं, ये 20 दिख रहा है ना यहां से। नाउ ये क्या होगा, tan इनवर्स। ओके, ये किस फॉर्म में है, dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x बाई ए 1 बाई ए, यहां पे 1 बराबर d है, तो हमारा वैल्यू क्या हो गया, लैम्डा dl 2, दिस इज d, ये डिस्टेंस d, and 2 pi epsilon naught 1 by d tan inverse x by d and minus b by 2 2b by 2। d is going to be cancelled out, हमारे पास जो बच गया है lambda dl 2 pi epsilon naught। आप जब इसे पुट करते हैं
तो क्या होगा, tan इनवर्स x बाई डी, ये प्लस हो जाएगा तो नीचे 2 हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x या b बाई 2 पुट करेंगे, देन b बाई 2d, माइनस है तो माइनस फिर पुट करेंगे 2 हो जाएगा, इसलिए हम 2 डायरेक्ट लिख देते हैं, ये भी कैंसिल हो गया। देन वी हैव लैम्डा एल पाई इप्सिलॉन नॉट tan इनवर्स b बाई 2d, ये आपका फ्लक्स है। ओके, दिस इज द फ्लक्स। दिस इज वेरी एक्चुअली, ये इंजीनियरिंग ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम करेंगे। जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आप कहीं से देखना होगा, तो इसमें प्रोजेक्शन लेना होगा, प्रोजेक्शन के थ्रू आपको समझना होगा, ठीक है। तो इसे समझने के लिए आपको फिर से रिकॉल कर देते हैं, जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो आप दोनों को देखना होगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए को भी देखना होगा, तो कहीं ना कहीं से आपको देखना होगा। ओके, तो अक्सर सोर्स को एक पॉइंट की तरह हम देखेंगे तो हमें सुविधा होगा, ये पॉइंट से डिस्टेंस डी क्या है, और हम बस उसके बाद हमारा सिंपल इंटीग्रेशन है, ई और डी ए का एंगल हम लोग मेजर कर लेंगे, इस टर्म में हम लोग लिखेंगे फ्लक्स को और फिर कैलकुलेट कर देंगे। एलिमेंट्री जो हमारा मैथमेटिकल इक्वेशंस है उसको इंटीग्रेट करेंगे और हमारा फ्लक्स निकल जाएगा। ओके, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, एंड थैंक यू।